Okay, good morning, everyone. Good Good morning, sir. lecture. Morning, sir. Okay, good morning, good morning. So everybody is able to hear me, right? Yes, sir. Okay, so we'll start with the today's lecture. So today's lecture is again, it is a database management system. So I will just start with the presentation. So in the last lecture, we have started with the first module. Is everybody has get inside the class? Currently, we have 37 students. Okay, so we'll start. They will soon join in. Fine. So in the last lecture, we have started with the first module. So the title of the first module was called as Database System Concepts and Architecture. Okay. So in the first module, we started with defining what is a data. We have defined what is information. We have defined what is database, and then finally we have defined what is database management system. So can anybody explain me what is a data? Data क्या होता है? Is it similar to information or Data is is it? a raw fact. There is raw or unprocessed. So data is a raw fact, exactly, but there is another word which is called as unprocessed. So when if it is unprocessed form, it would be called as data. If the data is processed, then it will be called as Information. 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 If the data is processed and it makes some certain sense, or it makes certain logical sense, then that will be called as a information. So there is a difference between data and information. Data जो generally होता है वो unprocessed form में होता है, और जो information होता है वो generally processed form में होता है. Okay. So डेटा को जहाँ पे हम स्टोर करेंगे वो जगह को हम डेटाबेस बोलते हैं. Okay. So database is nothing but it is a collection of the data. So जो डेटा है उसका कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलेंगे, लेकिन ये जो डेटा है that should be related to each other. Okay, ऐसा नहीं कि कोई भी आप कहीं का भी डेटा उठा के आप डाल दोगे, it will become a database. No, database should be related to each other. Okay, for example, if I'm making a database of a mall, so mall के अंदर वो मॉल के अंदर जितने भी एंटिटी होंगे, whether it is a customer, whether it is a product, whether there is a transaction, ये सारों का record जो आप रखोगे, it would be stored into a place. That place will be called as a database. Okay. Similarly, अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अगर आप एक डेटाबेस बनाना चाहो, so उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कस्टमर का डिटेल आएगा, उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं उनका डिटेल आएगा, उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो आपका डेली पावर यूटेज आउटेज हो रहा है या यूसेज हो रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आएगा. सो उस पर्टिकुलर पूरे डेटा जो जहाँ पे वो डेटा स्टोर होगा उस जगह को हम डेटाबेस बोलेंगे. ओके. So always the database should store the data which are related to each other. Okay, and they should be organized in a proper way. So that system is called as a database. So database बनाते क्यों है? The reason behind building this database is so that कि आप आसानी से उसको स्टोर कर सको, उसको मैनिपुलेट कर सको, उसको रिट्राइव कर सको, और उसको फ्यूचर में कहीं पे भी उसको यूज कर सको. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ डेटाबेस. ओके. सो ये जो डेटाबेस अगर आपको बनाना है, इसको अगर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करोगे, दैट सॉफ्टवेयर विल बी कॉल्ड एज MySQL. yeah. So MySQL is one of the software that we generally use. Overall, MySQL is a which software? MySQL is a which software? It is a Java is a programming software, right? Java is a programming language. What about MySQL? MySQL is a Yes. it is a database management system, or we can call it as a DBMS. Okay. So the next thing we need to understand is called as a DBMS. So DBMS is nothing but it is a software that allows you to create a database. जो database को create करने के लिए काम में आती है. So database create करने के काम में आती है, इसका मतलब data का क्या क्या data store करना है, वो data का क्या data type होगा, वो data के अंदर क्या values होगी. तो ये सब चीजें जो आपको बनाना है, ये सब manage करने के लिए, ये सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह पर रखने के लिए, ये सब आपको जो मदद करती है उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और जो आजकल मॉडर्न डे में जो आप सॉफ्टवेयर जो यूज करते हो, वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज MySQL. इसके अलावा there are Oracle, there are SQL servers, IBM DB2. There are different types of database management system softwares. Okay, so out of which we generally that we have studied, that we have looked into, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था वो एक सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था MySQL. Okay. So that is all related to database management system. ये सब definition आपका हो गया है. Now we'll go into the more detail. जो syllabus का next part है, that we need to understand the characteristic of database management system. Okay. So the next topic that we need to understand is called as a कि वो database management system जो आप use कर रहे हो, जो software आप use कर रहे हो,
यूज कर रहे हो उसकी खासियत क्या है, उसकी खूबियां क्या क्या है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो जो सबसे पहले कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप ओपन करोगे तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो डेटा होगा वो हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा। ओके, सो हमने देखा था MySQL में, अगर हमने ओपन किया MySQL में, देयर वाज अ डेटाबेस कॉल्ड एज SQL स्टोर। उसके अंदर there were a large number of tables। उसके अंदर से एक टेबल था जिसका नाम था कस्टमर। उस कस्टमर को जब हमने देखा तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर था। तो जनरली जो भी डेटा स्टोर था वो कुछ टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो टेबल के फॉर्म में क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज रिट्राइविंग एंड रीडिंग फ्रॉम टेबल, डेटा को अगर टेबल में अगर हम रखते हैं तो उसको रीड करना और उसको रिट्राइव करना और उसके अंदर स्टोर करना ज्यादा आसान हो जाता है। सो ये 1950-60 से, उससे बहुत पहले से हमने डेटा को जब भी स्टोर किया उसको टैबुलर फॉर्मेट में ही रखा। तो ये प्रैक्टिस आज तक चले आ रही है और अभी भी ये बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस है कि डेटा को हम टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सके। तो दैट इज व्हाई दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो भी डेटा को इसी फॉर्मेट में रखता है। ओके, सो इससे आसान क्या हो जाता है, आपका रिट्राइवल आसान हो जाता है, मैनिपुलेशन आसान हो जाता है, और आपको डेटा से इंफॉर्मेशन अगर माइन करना होगा, ये सब चीजें आपको टेबल के फॉर्म में अगर माइन करना होगा तो ज्यादा आसान होगा। So that is why the first characteristic of every database management system is it stores data in the form of tables. Second characteristic पे अगर आप जाओगे, so we have got the second characteristic called as it reduces the redundancy. So redundancy in short, redundancy का meaning क्या है? What is the meaning of redundancy? Duplication. 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 So if I've got multiple data, अगर मान लो अगर आपका नाम है, so in ration card your name might be different. There is a column in ration card also name करके, whereas आधार कार्ड में भी name है, whereas पैन कार्ड में भी name है, whereas पासपोर्ट में भी name है, आपके SSC सर्टिफिकेट में भी name है। तो basically what is happening is that कि name हर जगह पे है और हर जगह पे डुप्लीकेशन हो रहा है। so name आपका हर डॉक्यूमेंट में आपका नेम है। so ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या करता है, क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर में अगर आप देखा जाए, कोई भी कंप्यूटर के अंदर दो चीज सबसे मायने रखती है, एक है स्पेस स्टोरेज और दूसरा है आपका रिसोर्सेज। ओके, यानी बेसिकली जो स्पीड, जितने स्पीड पे आप काम करते हो, कोई भी चीज अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो वो हमेशा आप ये कोशिश करते हो कि वो कम से कम स्पेस ले, या दूसरी चीज क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड में आपको प्रोसेस करके दे। ओके, ये दो चीज अगर आपको कोई भी प्रोग्राम करके देता है या कोई भी सॉफ्टवेयर करके देता है, वो ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, सो इफ यू आर बिल्डिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कम से कम जगह लेगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोरेज बचेगा, क्योंकि स्टोरेज की कीमत है, स्टोरेज का प्राइस आपको पे करना पड़ता है। दूसरा, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप कोई भी क्लिक करे हो, सडन क्लिक करने पे विद इन मिली सेकेंड में अगर आपको रिस्पॉन्स दे देता है, तो ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर कहलाता है, ज्यादा बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर क्यों होगा टू अ ट्रेडिशनल या पुराने जमाने के अप्रोच से बेटर अप्रोच क्यों होगा? क्योंकि ये जो रिडंडेंसी है, जो डुप्लीकेशन है, जो नेम आपका 10 जगह जो पुराने जमाने में यूज होता था, आपके आईडी कार्ड पे, आपके कॉलेज के अंदर, आपके राशन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, हर जगह आपका नेम वही बार बार रिपीट हो रहा है। सो बेसिकली अगर कंप्यूटर में भी अगर हम यही प्रैक्टिस फॉलो करने लगे कि 10 टेबल के अंदर जहां जहां आपका नाम यूज हो रहा है, वहां पे अगर आप अपना नाम डालते चले जाओगे तो आपका जो स्पेस है, जो मेमोरी है, वो वेस्ट होना चालू हो जाएगी। सो यही चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि मेमोरी वेस्ट ना हो, क्योंकि मेमोरी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत वाली चीज है, उसको जितना आप बचाओगे उतना आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कम से कम जगह लेगा। तो इसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, वो रिडंडेंसी को कम करने की कोशिश करता है, डुप्लीकेशन को कम करने की कोशिश करता है। जहां पे नेम को अगर वो एक जगह पे स्टोर करेगा, उससे उसका काम हो जाएगा, तो उसको एक जगह पे स्टोर करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस रिडंडेंसी। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं करते हो तो रिडंडेंसी को रिड्यूस करना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। whereas if you use a database management system, redundancy automatically आपका reduce हो जाएगी with the help of a feature called as normalization. Okay, so that normalization will be discussing later. We'll be discussing basically in the module number 5, which is उसको समझने के लिए पहले बाकी सारी बेसिक्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके आप normalization को समझ पाओगे। Okay, so that normalization is nothing but it is a feature of DBMS which help you in reducing the redundancy. Redundancy in short is called as a duplication. We'll go to the next characteristic. The next characteristic is called as data consistency. So basically DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो आपका डेटा को कंसिस्टेंट रखता है। कंसिस्टेंट का मतलब, अगर मान लो रिडंडेंसी हो जाती है
या अगर डेली लाइफ में रिडेंडेंसी है आपके, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड में आपका नेम है, पैन में नेम है, एसएससी के सर्टिफिकेट पे नेम है, एचएससी के सर्टिफिकेट पे नेम है, कॉलेज का जो रिजल्ट आपका आया होगा उस पे भी नेम है, इतने सारी जगहों पे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पे अगर आपका नेम है और वो सब डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब आपका जो नेम है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो एज सिंपल एज दैट। कंसिस्टेंसी का मतलब इट शुड रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। इनकंसिस्टेंट का मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती होगी। ओके, जनरली अगर आप देखोगे, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट निकालोगे कहीं ना कहीं आपको गलती मिलेगी। कोई है यहाँ पे ऐसा जिसका डेटा इनकंसिस्टेंट है या नेम इनकंसिस्टेंट है? शायद एसएससी पे थोड़ा मार्क गलत हो गया होगा, इलेक्शन कार्ड पे आपके थोड़ा नाम गलत हो, कोई है यहाँ पे? इज देयर एनी पर्सन? Yes, sir. Okay, so that is why generally जो डेटा generally I am from UP actually, so UP से generally जो होते हैं ना उनका ज्यादातर नाम में गड़बड़ होता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पे। बट जनरली इफ यू फ्रॉम यूपी, जनरली यूपी या बिहार के जनरली जो लोग होते हैं वहाँ पे, या तो उस जमाने में उनके पास जो हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, उनको नेम रखने में या नाम लिखने में उनको थोड़ा दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ माई नेम इज अहमर ना, तो ज्यादातर मेरे डॉक्यूमेंट पे इट इज डी रिटन डाउन, so they are not aware with the Arabic naming system, so इसकी वजह से अब उनकी गलती नहीं है, हमारा जो कल्चर है थोड़ा हिंदी स्पीकिंग होने की वजह से, so they don't know whether अहमर के अंदर आर आता है कि डी आता है। so I have to rectify my documents when I was building my passport, so मुझे बहुत सारे टाइम पे मेरे को जाकर के ये सब चीजें चेंज करना पड़ा। so ये इसका मतलब मेरा डेटा जो है इनकंसिस्टेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, वरना अगर मैं उसको इनकंसिस्टेंट ही रख दूंगा तो क्या होगा, देयर वुड बी अ कंफ्यूजन। सो फ्यूचर में अगर कोई मुझे अहमद बुलाएगा तो भी मुझे जाना पड़ेगा, अहमद बुलाएगा तो भी मुझे जाना पड़ेगा, सो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, तो सिमिलरली अगर डेटाबेस के अंदर अगर आपने अपना डेटा को इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में रख दिया, तो अगर आप कोई भी वैल्यू अगर आप चाहोगे तो वो इनकंसिस्टेंट आपके पास आएगा, यानी हो सकता है उसकी सही वैल्यू भी आए, हो सकता है वो गलत वैल्यू भी आए। तो ये एक एरर आपके मतलब आपका जो भी आउटपुट आएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर प्रोन रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर इंड्यूस हो जाएगा जो आप नहीं चाहोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। सो डीबीएमएस जो है वो आपके सॉफ्टवेयर जो भी आपका डेटा जो स्टोर करता है उसको हमेशा कंसिस्टेंट बनाता है। वो कंसिस्टेंट कैसे बनेगा, वो पहले कोशिश करेगा कि पहले मैं डेटा को जो उसका रिडेंडेंसी, जो उसका डुप्लीकेशन है उसको मैं कम करने की कोशिश करूं। अगर वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, अगर समझ लो 10 जगह नाम था, अगर वो 2 जगह पे कर पाता है, 2 ही जगह पे अगर आपको नेम को स्टोर करना इज मैंडेटरी, तो वो 2 जगह पे आप चेक करेगा कि अगर दोनों जगह पे इक्वल है तभी वो डेटा को स्टोर करेगा। अगर इनइक्वल है तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि डेटा आपका यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, सो इट इज इन इनकंसिस्टेंट स्टेट, सो प्लीज रेक्टिफाई इट। सो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे एंड फाइनली आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में चले जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. Okay, so data consistency and data redundancy both are dependent on each other, क्योंकि जितना डुप्लीकेशन होगा आपका उतना इनकंसिस्टेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर नेम जो है वो अगर एक ही जगह पे अगर आप रखोगे तो जो भी उसके अंदर स्टोर करोगे वही वैल्यू उसकी होगी, 2 जगह पे होगी तो देयर इज अ 50% चांस कि डेटा आपका इनकंसिस्टेंट होगा। अगर 3 जगह होगा तो प्रोबेबिलिटी और गिर जाती है। ओके, सो देयर आर वन आउट ऑफ 3 चांसेस कि वो शायद बराबर होगा, लेकिन 2 आउट ऑफ 3 चांसेस जो है वो गलत हो सकता है। ओके, सो एज सून एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। ओके, सो ये हम कोशिश करेंगे कि डुप्लीकेशन कम करें, ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी उसकी बेहतर होती चली जाएगी। The next feature is called as it supports multiple user and concurrent access. Multiple user and concurrent access का मतलब क्या है कि जो डेटाबेस है वो जो आपका टेबल के फॉर्म में जो डेटा आपने रखा है उस टेबलर डेटा को मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जो हमने टेबल बनाया था, डेटाबेस बनाया था एसक्यूएल स्टोर करके इन माई एसक्यूएल, अगर उसको मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस करना चाहे एक ही टाइम पे, एक ही टाइम का मतलब कॉन्करेंट होता है। अगर इफ मल्टीपल यूजर आर ट्राइंग टू एक्सेस एट द सेम टाइम देन दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ करता है कॉन्करेंट एक्सेस करने के लिए और मल्टीपल यूजर को एक साथ एक्सेस करने के लिए। अनदर प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस कि अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, अगर आपको एग्जिट करना है तो जो फाइनली जो आपका लास्ट में जब आप कैश आउट करते हो, चेकआउट करते हो, बेसिकली उस चेकआउट के टाइम पे
ऑल द पीपल आर यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर, ओके, और वो सबके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो स्कैन करते हैं, आपके बारकोड स्कैनर लगा के स्कैन करते हैं एंड फाइनली एक साथ चेकआउट भी करते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या हो रहा होता है, उसी डेटाबेस के ऊपर मल्टीपल चेकआउट लाइंस के थ्रू आपका डेटा को डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है। तो वो दैट इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल व्हिच सजेस्ट दैट कि जितने भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो ज्यादातर सब के सब मल्टीपल यूजर को और कॉन्करेंट एक्सेस को सपोर्ट करता है। Okay, next is query language. Okay, so DBMS provides you a query language, special query language, which is called as structured query language, SQL जिसको बोला जाता है। और ये structured query language को यूज करके आप डेटा को रिट्राइव, डेटा को फेच, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब कुछ आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो ये जो क्वेरी लैंग्वेज है जो हमने देखा था लास्ट टाइम वाज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके अंदर हमने एक शो क्वेरी यूज किया था, सिलेक्ट क्वेरी यूज किया था, यूज क्वेरी यूज किया था। दो सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेजेस जो हम आगे के बेसिकली फोर्थ मॉड्यूल में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जनरली अगर आप मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहो, सो क्वेरी लैंग्वेज इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज कॉल्ड एज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, अदर इज कॉल्ड एज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो एक से आप टेबल बनाते हो और दूसरे से आप टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हो। ये दो मोटे तौर पे क्वेरी लैंग्वेज को डिवाइड किया जाता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, बट जनरली क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, अगर आप क्वेरी लिख सको ताकि डेटाबेस से कोई भी डेटा अगर आपको चाहिए या उसके अंदर डालना है या डिलीट करना है तो उस लैंग्वेज को हम क्वेरी लैंग्वेज बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आप डेटा रखते हो वो जनरली सिक्योर होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर लेवल ऑफ ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म उसके अंदर होता है। सो किसको क्या दिखाना है, किसको किससे क्या हाइड करना है, सो दैट इज ऑल बीन मेंटेन्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसकी वजह से जो आपका सिक्योरिटी होता है वो डीबीएमएस का ज्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू सम अदर सिस्टम अगर आपको यूज करते हो तो इसके मुकाबले। The last feature that the DBMS, the last characteristic और feature बोल लो जो DBMS सपोर्ट करता है उसका नाम है ट्रांजैक्शन। ओके, तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे अगर आप ट्रांजैक्शन का मतलब बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट। एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अगर उसमें से कोई भी फेल हो जाती है तो वो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट भी हुआ था वो भी आपको रोल बैक करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। सो प्राइम एग्जांपल कि अगर आप एटीएम से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो अगर बीच में वो पावर फेलियर होने की वजह से अगर वो आपका ट्रांजैक्शन अवॉइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो वो जो भले ही वो आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो गया था, वो प्रीवियस अगर आपको कैश नहीं मिला तो वो आपके अकाउंट में वो पैसे वापस आ जाना चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। सो रोल बैक, देयर इज अ फीचर कॉल्ड एज रोल बैक, देयर इज अ फीचर कॉल्ड एज कमिट। और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सब डीबीएमएस के अंदर एप्लीकेबल है, ये सब डीबीएमएस के अंदर आपको सपोर्ट मिलता है। सो देयर इज अ ट्रांजैक्शन मैनेजर जो ये सब हैंडल करता है। ओके, so these are the different characteristics that we have gone through, that we have studied in the previous class. I hope it is clear to you. Yes, Is it clear? yes, sir. Okay, so we'll go to the next part. Next part में we'll from today's lecture we'll look at the advantages of database and management system. So advantage क्या है? What is the advantages? One is सबसे पहले अगर DBMS सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, whether it can be a MySQL, it can be Oracle, Sybase, etc. जो भी DBMS सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको क्या बेटर देता है कंपेयर टू अगर आप डायरेक्टली अगर कोई भी फाइल में डाल देते हो। ओके, फॉर एग्जांपल फाइल आप बना रहे हो, उस फाइल के अंदर आप नेम, आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, ये सब अगर एक फाइल में डालते हो और वही चीज अगर आप उसको डेटाबेस में डालते हो तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस? सो एडवांटेज क्या है कि इट रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन, इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को अगर आप रिड्यूस कर देते हो तो वो आपका स्टोरेज जो स्पेस है वो बच जाएगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली इट रिड्यूसेस द डुप्लीकेसी। सेकंड जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि इट हेल्प्स इन रिट्राइवल ऑफ डेटा थ्रू क्वेरी लैंग्वेज वेरी इजी। ओके, सो क्वेरी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एसक्यूएल यूज करो तो मैंने वहां पे लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ओके, सो विच मींस कि मैंने सिर्फ एक लाइन का मैंने क्वेरी लिखा और मुझे जितने भी कस्टमर थे उस पर्टिकुलर डेटाबेस से वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल गए। यही सेम क्वेरी अगर आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो
लेकिन आपको उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो मुझे अगर एक फाइल में सब कस्टमर का नाम लिखा होगा या उसका डेटा या उसका एड्रेस, ये सब अगर एक फाइल में रखा हुआ है, एक नोटपैड में लिखा हुआ है मान लो, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट का एक नोटपैड है, और मुझे उससे रिट्राइव करना है कि कस्टमर का मुझे लिस्ट चाहिए, उनका नाम चाहिए, तो मुझे एक जावा का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और ये जावा का प्रोग्राम एक बहुत लेंदी प्रोग्राम होगा उसको रिट्राइव करने के लिए। ओके, सो दैट इज व्हाई रिट्राइवल ऑफ डेटा यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी सिंपल। सो यू कैन यूज अ क्वेरी लैंग्वेज, एक लाइन का क्वेरी लिखोगे या मैक्स 4-5 लाइन का, 10 लाइन का, 15 लाइन का, उससे ज्यादा नहीं होएगा क्वेरी लैंग्वेज आपका। उससे ज्यादा 15 लाइन 20 लाइन से ज्यादा आपका कोई भी क्वेरी लैंग्वेज, कोई भी क्वेरी आप आसानी से उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो। वेरएज अगर आपको प्रोग्राम लिखना होगा, वो प्रोग्राम 4 पेज का, 5 पेज का, 10 पेज का भी हो सकता है, अगर आपको छोटा सा भी डेटा रिट्राइव करना होगा तो। सो दैट इज व्हाई रिट्राइवल ऑफ डेटा using DBMS is much advantageous compared to some other systems. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Next is reduce development time and maintenance need. Okay. So इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर आपको डेटा को अगर DBMS में डालना है तो वो आप आसानी से डाल पाओगे, क्योंकि जनरली जो डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो जनरली टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, सो टेबल के फॉर्म में अगर मैंने मान लो अगर मैंने एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर देयर इज अ कस्टमर आईडी। ओके, उसके बाद उसके अलावा उसका नेम अगर होगा, लेट्स अज्यूम, उसके अलावा उसका एड्रेस होगा। तो अगर ये मुझे अगर इसके अंदर डेटा मुझे डालना है तो ऑटोमेटिकली इसका स्कीमा बना हुआ है। ओके, सो मुझे सिर्फ उसके एड्रेस के अंदर एड्रेस डालना है, नेम के अंदर नेम डालना है और आईडी के अंदर आईडी डालना है। तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट टाइम होगा, जो मेंटेनेंस होगा, यानी मुझे कभी भी किसी का डेटा चाहिए वो मुझे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे उसका एक्चुअली पता है कि फॉर्मेट क्या है, मुझे पता है कि वो कहाँ पे किस फॉर्मेट में स्टोर्ड है। ओके, तो दैट इज व्हाई द डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस टाइम विल बी मच लोअर कंपेयर टू अगर मान लो अगर आप एक फाइल के अंदर इसको स्टोर करते हो, तो फाइल में आप कोई भी फॉर्मेट में कभी भी कैसे भी स्टोर कर सकते हो। मान लो अगर आप एक पीपीटी बना रहे हो या एक नोटपैड पे अगर आप यही चीज लिख रहे हो कि कस्टमर आईडी क्या है, तो कस्टमर आईडी लिखने के टाइम पे हो सकता है पहले कस्टमर आईडी का नाम, पहला जो आपने फॉर्मेट लिखा, लेट्स अज्यूम कस्टमर आईडी आपने डाला 1 2 3, उसके बाद उसका नाम अज्यूम कर लो, कस्टमर का जो नेम था वो आपने डाला ABC। उसके बाद मान लो सेकंड कस्टमर आया, बट सेकंड कस्टमर का पहले आपने नेम पहले सेव कर लिया गलती से। ओके, सो नेम आपने डाल दिया XYZ एंड फाइनली उसके बाद आपने उसका आईडी डाला। सो उसका आईडी एज्यूम कर लो 789 उसका आईडी है। ओके, सो ऐसा कुछ फॉर्मेट में अगर आपने नोटपैड में डाला, सो नोटपैड में क्या है, देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट। हो सकता है आप नेम डाल दिया, फिर आईडी डाल दिया, फिर आईडी पहले रख लिया, फिर नेम डाल दिया, फिर बीच में कहीं एड्रेस डाल दिया। सो देयर इज जो चीज आपको जब याद आएगी उस हिसाब से आपने उसको डाल दिया। लेकिन अगर डेटाबेस में चूंकि आपके पास एक फिक्स फॉर्मेट आपको बनाना होता है, डेटा हमेशा टेबल के फॉर्म में रहता है, तो वो एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीका है आपको डेटा को रखने का। सो डेटा को अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे तो उतना ही आसानी से आपको उसको ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। सिमिलरली जैसे कि अगर आप घर को साफ क्यों रखते हैं आप जनरली, ताकि कोई भी चीज को घर को ऑर्गेनाइज क्यों रखते हैं, ताकि आपको उसका एक्चुअली पता हो। आप जनरली अगर ग्लास ढूंढोगे तो ग्लास हमेशा आपको किचन में मिलेगा। ओके, हाँ वो अलग बात है कि जनरली हमारी आदत खराब होती है, हम कहीं पे भी ग्लास को रख देते हैं, बट जनरली अगर आपको एज अ कोई भी न्यू कमर अगर आपके घर में होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि ग्लास विल बी इन किचन, या प्लेट अगर आपको चाहिए तो किचन में ही मिलेगा। ओके, तो सिमिलरली डेटा के साथ है। सो अगर डेटा को अगर एक आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे कि आईडी के अंदर ही आपको आईडी मिलेगा, नेम के अंदर ही आपको कस्टमर के नेम मिलेंगे और एड्रेस के अंदर कस्टमर के एड्रेस मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका डेवलपमेंट टाइम है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का जो डेवलपमेंट टाइम होगा या उसको मेंटेन करने का जो टाइम लगेगा आपको, कि जब डेटा आप उसके अंदर डालोगे तो ये टाइम ऑटोमेटिकली कम लगेगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस और अदर सिस्टम। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज डेटा सेंटर्स। ओके, सो अभी आजकल जितने भी अगर आपने सुना होगा, देयर आर टर्म्स व्हिच इज कॉल्ड एज क्लाउड के बारे में सुना है आपने? Yes. Heard Yes, about sir. this? Yes, sir. Okay, so there is a Apple cloud, there is a Google cloud. Okay, there are different companies provide their different clouds. So अभी बीच में recently सुना होगा कि Apple cloud basically got leaked और उसका बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे पर्सनल इमेजेस MMS लीक्स हो गए थे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के। सो आजकल अगर आप देखा
जाएगा तो बहुत सारे ये जानबूझ के किया भी गया था, बिकॉज क्लाउड एक आजकल के जमाने में एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। ओके, इट हैज बिकम अ बिग बिग मार्केट नाउअडेज। सो राइट नाउ जैसे कि अगर आपको कैश कहीं रखना होता है या अगर आपको अपना ज्वेलरी अगर कहीं रखनी होती है, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड एज बैंक बेसिकली। सो आप बैंक में जाते हो, अपनी ज्वेलरी रखते हो, अपने कैश रखते हो और उसको डिपॉजिट करके आ जाते हो। सिमिलरली अगर आपको अगर डेटा रखना होता है आज के जमाने में, तो आपको वैसी डेटा क्लाउड सेंटर्स होते हैं। ओके, सॉरी, क्लाउड डेटा सेंटर्स होते हैं। ये क्लाउड डेटा सेंटर्स में जाना होता है आपको, और अपना जाना नहीं होता है बेसिकली, आप ऑनलाइन ही ये सब एक्सेस करते हो और अपना डेटा को उसके अंदर डालने के लिए आपको पे करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल देख पाओ, जीमेल के अंदर या गूगल का अगर आप अकाउंट बनाओ, तो गूगल का जो ड्राइव है, वो ड्राइव पे आपको 15 GB का लिमिट मिलता है मेरे ख्याल से। इज इट 15 या 15 GB मेरे ख्याल से। सो 15 GB से ऊपर अगर आपको 100 GB अगर अगर आपको चाहिए, अगर 100 GB का डेटा अगर आपको स्टोर करना है, तो आपको पे करना पड़ता है। सेम इज द केस विद एप्पल एज वेल। ओके, सो अगर आपको एप्पल के लिए करना है, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो एज लॉन्ग एज वो पेड सर्विस है, तो उसका सिक्योरिटी का जो लेवल होता है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। लेकिन अगर वो पेड नहीं है, तो वो सिक्योरिटी थोड़ा लो होता है। तो बेसिकली इट बिकम्स अ बिजनेस मॉडल नाउअडेज। सो हाँ, तो ये बताने का मकसद था कि डेटा सेंटर्स आने की वजह से, क्लाउड के आने के बाद जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है, वो इनफाइनाइट हो गई है। तो अगर आपको हजारों जीबी का डेटा भी स्टोर करना है, वो आप आसानी से कोई भी डेटा सेंटर्स को ले करके उसके अंदर डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। सो आपके हार्ड डिस्क तक लिमिट नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे पास अभी करेंटली दिस सिस्टम दैट आई एम होल्डिंग इज गॉट 1 TB का हार्ड डिस्क है और 220 का उसका SSD है। सो ये जो है, इसका मतलब मैं नहीं उसके अंदर 120 या 1020 GB ही उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं 5000 GB भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए क्लाउड का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो उसके लिए क्लाउड के सपोर्ट के लिए मुझे क्लाउड को पे करना पड़ेगा। सो बट DBMS हेल्प्स यू। DBMS आने की वजह से ये सब चीजें बहुत आसान हो चुकी है। जो भी मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो डायरेक्टली मैं क्लाउड के ऊपर डाल सकता हूँ, क्लाउड से डेटा को फेच कर सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज इट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay. Next is seamless integration into application program language, which makes it very easier to add a database to almost any application or website. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन के साथ अगर आप डेटाबेस को जोड़ना चाहो, तो वो बहुत आसानी से आप कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। सो वेदर यू वांट टू ऐड, अगर जावा का एक फ्रंट एंड बनाया मैंने, ओके, सो जावा का फ्रंट एंड मैं बहुत आसानी से एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग अ ड्राइवर कॉल्ड एज JDBC ODBC ड्राइवर, विच स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। ये ड्राइवर यूज करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, इनके बीच का कनेक्टिविटी मैं मेंटेन करूंगा और ऑटोमेटिकली जावा को मैं डेटाबेस के साथ आसानी से कनेक्ट कर लूंगा। वैसे ही और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ को कनेक्ट करना है, जैसे कि मुझे पाइथन को कनेक्ट करना है, जैसे कि PHP को कनेक्ट करना है, जैसे कि HTML को कनेक्ट करना है। देयर आर डिफरेंट, जो भी मैं मार्कअप लैंग्वेज को कनेक्ट करना चाहूँ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कनेक्ट करना चाहूँ, C# को कनेक्ट करना चाहूँ, तो मैं बहुत आसानी से उसको एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। सो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होगा तो मुझे DBMS की मदद लेना पड़ेगा। सो DBMS helps you to connect easily from one application to database with the help of a database driver. Is it clear? So integration of application programming language और database को आसानी से आप आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है, लेट्स अज्यूम आई हैव गॉट एन एप्लीकेशन। ओके, सो ये एक एप्लीकेशन है जो कि जावा में बना हुआ है। ओके, और एक डेटाबेस है, अज्यूम कर लो ये डेटाबेस या समझ लो कस्टमर का है या एक कॉलेज का समझ लो एक डेटाबेस है, और ये एप्लीकेशन सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन, और उनको चेक करना है कि उनका अटेंडेंस लगा है कि नहीं है। MIS का समझ लो एक बना है, तो MIS का सॉफ्टवेयर आप जावा में बना सकते हो और डेटाबेस आपने बनाया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनके बीच में कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और इनके बीच में कुछ सेट ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। वो ड्राइवर का नाम होता है JDBC ODBC ड्राइवर। ओके, सो ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और ये ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद कुछ 3-4 लाइन का सेट ऑफ कोड है जो आपको लिखना होता है, और उसके बाद फाइनली आपका जावा जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। और जो भी चीज़ आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि आपका अटेंडेंस क्या है, तो आप सिर्फ जावा के ऐप पे जाओगे, उसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जाओगे और वहाँ पे आप अपना
जो अटेंडेंस वाला टैब है उसको सिलेक्ट करोगे, और अगर आपको अटेंडेंस मान लो 1 जुलाई से चाहिए तो 1 जुलाई आप सिलेक्ट करोगे, टिल नाउ का आप सिलेक्ट करोगे एंड सबमिट करोगे। सबमिट होने से जो भी क्वेरी होगी वो जनरेट होगी, वो क्वेरी जाएगी इस डेटाबेस सर्वर के पास। डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका टेबल आएगा या जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को वापस इस चैनल के थ्रू आपके जावा के फ्रंट एंड पे जाकर के उसको दिखा देगा। सो दैट इज व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग हो सकती है, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से आप डेटाबेसेस और इंटीग्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. these are the advantages of DBMS. So if you're maintaining a book, अगर आप बुक मेंटेन करें तो प्लीज एक सवाल लिख लो जो कि पहले क्वेश्चन में, बहुत पहले मॉड्यूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। शुड आई डिक्टेट? Yes. Yes. Okay. So write down the question. The question is, what is database management system? What is database management system? Question mark. List its characteristics. List its characteristic, comma, advantages and disadvantages. List its characteristic, comma, advantages and disadvantages, full stop. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो 5 मार्क के लिए क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज डीबीएमएस, ये भी एक 5 मार्क का सवाल बन जाता है। सेकंड, अगर 5 मार्क का पूछा जाए तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक 5 मार्क का सवाल बन जाएगा। या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, ये भी एक 5 मार्क का सवाल बन जाएगा। सो अगर एक क्वेश्चन में अगर डाला जाए तो यही क्वेश्चन बनेगा। यही चीज आपको ज्यादातर पहले मॉड्यूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। ये बिना पढ़े अगर कोई क्वेश्चन बैंक चाहता है तो वो उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? We'll go to the next slide. Next slide is related to disadvantage of database management system. Okay, so disadvantage of database management system, अगर आप देख पा रहे हो, it is complex. Okay, so why it is complex? Because अगर आपको कोई भी चीज database management सीखना है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहा है तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली आपके लिए। सो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, आपको आपके सिस्टम के अंदर उतना स्पेस लगेगा उसको स्टोर करने के लिए। सो देयर आर बेसिकली आपको 10 चीजें आपको उसके बारे में जाननी पड़ेगी, तब जाके आप उस चीज को यूज कर पाओगे। सो बेसिकली इट इंड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड जो है पॉइंट है कि माई एसक्यूएल जो है वही एक अकेला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको उसका लाइसेंस वर्जन यूज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली इट इंड्यूसेस कॉस्ट एज वेल। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है, उसको कैसे यूज करना है ये सब आपको सीखना पड़ेगा, बट साथ साथ में उसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर रह सके, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सके, कॉन्करेंट मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सके आसानी से। कोई भी एप्लीकेशन के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको डीबीएमएस अगर आपको यूज करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम माईएसक्यूएल। आपको अगर वो यूज करना है आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको साथ में पेमेंट देना पड़ेगा। Okay, and finally the last one is called as it takes a large amount of size. Okay, so अगर आप DBMS अगर जिन्होंने MySQL अगर डाउनलोड किया रहेगा तो roughly it takes around 500 to 600 MB का स्पेस आराम से आपके हार्ड डिस्क का जाता है। Okay, so this is like MySQL वर्जन विच इज लाइक उसका सिर्फ वर्कबेंच और कुछ ही पार्ट ही हमने डाउनलोड किया था। लेकिन अगर आप एक फुल फ्लेज और एक एकदम हाई एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आप डाउनलोड मारते हो कोई भी सॉफ्टवेयर, ओरेकल या कोई और, तो वो जीबीस में जाते हैं उसका उस पर्टिकुलर सिर्फ सॉफ्टवेयर का। ओके, सो अभी तक तो आपने डेटाबेस उसके अंदर डाला नहीं, डेटाबेस का फिर अलग स्पेस चले जाता है। सो डेटाबेस में भी आपका 100 ऑफ जीबीस जाता है उसको बनाने के लिए और उसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। सो बेसिकली द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस इज दैट इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ साइज, और उतना आपको डेडिकेटेड रखना पड़ेगा आपके सिस्टम के अंदर। ओके, आप उसको कोई और जगह पे फिर उसको मतलब अगर मूव करना है तो फिर वो मूव कर सकते हो आप, लेकिन बेसिकली उसके अंदर कुछ और नहीं डाल सकते। ओके, सो वो डेडिकेटेड है तो उतनी ही जगह पे आप कोई और चीज के अंदर उसको स्टोर नहीं कर सकते, कोई और काम में उसको लेके नहीं आ सकते। दैट हैज टू बी गिवन डेडिकेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इज इट डिसएडवांटेज क्लियर टू यू? Yes, sir.
Yes, sir. Okay, so that is the first what you say the first part of your module. So we'll just go and revisit the module. So पहला module के अंदर अगर आप देखोगे, so we need to have an introduction of DBMS. So we have covered what is data, we have covered information, we have covered what is database, what is database management system. Second part, characteristic of database management system. So characteristic हमने पढ़ लिया है. Now we'll go to the next part, which is called as a file system versus the database system. Okay. So next part में हम जाते हैं. So before going to that, we'll look at some of the real-time example of database management system. So अगर फटाफट उसको overview ले लेते हैं. So database management system क्या होता है? It is a collection of interrelated data, जिसके लिए कुछ set of programs provide करता है database management system, जैसे कि SQL query बोली जाती है, और साथ में आपको एक environment दिया जाता है ताकि आप उसको conveniently और efficiently use कर सको. For example, the workbench. So इस पूरे चीज को हम database management system बोलते हैं. Okay, क्या करता है? वो data को collect करता है, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं ताकि आप उसको यूज करके डेटा को एक्सेस कर सके, और फिर फाइनली आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है जो कि आपको डेटा को आसानी से आप देख सको. तो ये पूरे सिस्टम को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे. उसके बाद डेटाबेस का एप्लीकेशन क्या है? इट इज जनरली यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम. तो बैंकिंग में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो वो सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बिना आप नहीं कर सकते. फिर वो एक एयरलाइन सेक्टर में यूज होता है. एयरलाइन में अगर आपको कोई भी टिकट बुक करना है या आपको एयरलाइन का चेक करना है कि आपका शेड्यूल क्या है, स्केड्यूल क्या है, अगर आपको कोई भी फ्लाइट का टाइमिंग जानना है, ये सब चीज पॉसिबल है अगर वो एयरलाइन का पूरा डेटा डेटाबेस में स्टोर. फाइनली द थर्ड एग्जांपल इज दैट इट कैन बी यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज एज वेल. सो यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी में अगर आपको चेक करना है कि क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या क्या सिलेबस आया है नया, या आपका टाइम टेबल क्या है, ये सब चीज़ें, ये सारे इन्फॉर्मेशन, या अगर आपको अपने ग्रेड्स चेक करना है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी को अपना डेटाबेस रखना पड़ता है. आपके कॉलेज में डेटाबेस है क्या? डज सेंट जॉन हैज अ डेटाबेस? डू यू थिंक सेंट जॉन हैज अ डेटाबेस? Yes. Yes. Okay, where it can be used? Where are you able to view the data from the database? कहाँ पे होगा, क्या होगा, कुछ बता MI. MIS. MIS is an application जो कि आप डेटा दिखाता है. वो डेटा में क्या क्या आप देख पाते हैं? What are the data that you can see? Attendance. Attendance, आप marks. अपना अटेंडेंस देख सकते हो, अटेंडेंस देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो. ओके, उसके अलावा टाइम टेबल, इज द टाइम टेबल व्यू टू यू? No. MIS में टाइम टेबल दिखता है No. आपको? नहीं No. दिखता. No. ओके, फाइन फाइन फाइन. सो वो आपको दिखता है. वही सेम MIS पे हमें अगर देखना होता है कि हमारी फ्यूचर क्लास क्या है, आगे की क्लास में क्या है, वो हम देख सकते हैं. सिलेबस क्या क्या है वो हम उस पर अपलोड करते हैं MIS पे, तो वो हमें दिखता है. हम आपका अटेंडेंस हमें अपलोड करने की फीचर कैपेबिलिटी मिलती है, तो वो हम कर सकते हैं. हमारा सैलरी हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमें उधर पे दिखता है. साथ में अगर हमें लीव अप्लाई करनी होती है, जैसे कि कोई बीमार हो गया है, तो अगर लीव अप्लाई करनी है तो दैट फीचर इज देयर इन द MIS. सो ये सब MIS जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक जगह पे मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करते कैटर करता है. ओके, सो ये सब कैटर करने के लिए, ये सारे डेटा को स्टोर करने के लिए आपको एक डेटाबेस लगेगा, और वो सॉफ्टवेयर जो यूज करेंगे उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाएगा. सिमिलरली इट कैन बी यूज्ड इन सेल्स सर्विसेज. तो अगर आपकी कोई कंपनी है जो कि सेल्स कर रही है, कोई सेल कर रही है, तो उसको अपना एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा जो कि कस्टमर का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, परचेजेस का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. देन ऑनलाइन रिटेलर्स हो गया, उसको रखना पड़ेगा. ऑनलाइन कोई बेच रहा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया. स्नैपडील तो खत्म ही हो गया बेसिकली, अमेजोन हो गया. तो उनको अगर कोई भी ऑर्डर है, अगर आपने ऑर्डर किया तो उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है कि अभी तक आपका सामान कहाँ तक पहुंचा है, तो वो सब करने के लिए आपको ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम रखना पड़ेगा. फिर और भी कुछ, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको उसका डेटाबेस रखना पड़ेगा. देन इन मैन्युफैक्चरिंग आपको यूज करना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग के लिए देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. ओके, सो अर्लियर बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट आई यूज्ड टू वर्क इन वन ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. सो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में बेसिकली आपका जो भी स्टॉक है ये सब आपको मैनेज करना पड़ता है. ओके, सो देयर इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देयर इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये सब चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है. सो इफ यू थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू मैनेजमेंट फील्ड, सो ये सब चीजें, ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको बार बार यूज होंगी. ई कॉमर्स करके सब्जेक्ट होगा, ई बिजनेस करके सब्जेक्ट होगा. सो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज SCM, ओके, व्हिच स्टैंड फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके,
तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जब तक वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ना हो जाए, उससे स्टार्ट से लेके वो मैन्युफैक्चर होने के बीच में जो भी एक सप्लाई चेन होती है, वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वरना अगर ब्रेक हो गई तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनने का जो डेट होगा वो आपका डिले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आईफोन 11 के बाद अभी मान लो अगर आईफोन 12 अगर आपको बनाना होगा, तो आईफोन 12 के अंदर जो A13 बायोनिक चिप है, विच इज द प्रोसेसर विच इज देयर इन द आईफोन, सो A13 बायोनिक चिप को हमें ऑर्डर करके पहले से मंगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यू नो राइट कि आईफोन 13 जो है, आईफोन 12 जो है, नया वाला जितने भी आईफोन है वो इंडिया में बनने वाला है। डू यू नो दिस रिको, हैव यू स्टडीड अबाउट दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो तो ये जो है तो A13 बायोनिक चिप जो चाइना में बनेगी वो इंडिया में पहले से आ जाने चाहिए। उसके साथ साथ जो चैसीज है, वो चैसीज जो चाइना में बनेगी वो इंडिया में आ जाना चाहिए। तो ये सब वक्त से पहले आ जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो सब असेंबली करने में, जो असेंबली का जो पार्ट है जो कि इंडिया में बनना है, जो असेंबल इंडिया में होना है, वो आसानी से आपका हो सके। सो ये सब चीज़ों को जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी दुनिया में होती है, उनको ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, स्टॉक का रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड रखने के लिए आपको डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा। सो डीबीएमएस इज जनरली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज वेल। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स में, ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स में जैसे कि द प्राइम एग्जांपल ऐसे कोविड केसेस। ओके, सो कोविड केसेस में कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोगों को कोरोना में है हुआ है, लेकिन वो अभी तक उस स्टेज में नहीं पहुंचे जहाँ पे उनको वेंटिलेटर की जरूरत है। तो ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का रिकॉर्ड रखने के लिए आपको डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है। ओके, सो जो COVID-19 India.org जो यूज़ है, वो जनरली एक अमेरिका में एक जॉन हॉपकिंस करके एक मेडिकल वो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सब डेटा को यूज करती है अपने मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। सो उन्होंने ये डेटाबेस बनाया और वो हमें व्यू करने के लिए हमें हेल्प करती है, ताकि हम भी उससे अवेयर हो सके और उसको यूज करके हम अपने हिसाब को अपने अपने आप को सतर्क रख सकें। सो ये सारे एप्लीकेशंस पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डेटाबेस का रिक्वायरमेंट लगेगा ही लगेगा। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, दीज आर सम ऑफ द लिमिटेड एप्लीकेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे तो एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस एग्जांपल दिया गया है। उसमें डेटाबेस का कैसे यूज किया जाता है, तो अगर कोई एक नया स्टूडेंट आता है तो नए स्टूडेंट को ऐड करने का उसके अंदर फीचर होता है, तो आप ऐड कर सकते हो। कोई नया इंस्ट्रक्टर आता है तो उसका रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो इंस्ट्रक्टर एज एन, लेट्स अज्यूम कि अगर मैं इस कॉलेज में ज्वाइन होता हूँ तो मेरा क्या क्या डिटेल लिया जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा सर्टिफिकेट्स का डिटेल लिया जाएगा, मेरा परसेंटेज लिया जाएगा, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस का डिटेल लिया जाएगा। ओके, तो दैट ऑल रिकॉर्ड हैज बीन टेकन। या अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर आप ज्वाइन करते हो कोई यूनिवर्सिटी में, तो आपसे डिटेल पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, आपका एसएससी का मार्क्स कितना था, एचएससी में कितना था, डिप्लोमा में कितना था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो एड्रेस है वो आपको बताना पड़ेगा, आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड है वो आपको बताना पड़ेगा। ये सारा रिकॉर्ड आपको स्टोर करना पड़ेगा इनटू यूनिवर्सिटी डेटाबेस। उसके बाद अज्यूम कर लो कि कोई अगर एक स्टूडेंट ज्वाइन हो जाता है और उसको कोई दूसरे कोर्स में जाना होगा, तो उसके लिए फिर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा टू सर्टेन कोर्सेज, उसके लिए भी आपको डेटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा। ओके, सो वंस डेटाबेस में डेटा आ चुके हैं, अब आपको अपग्रेड करना है। सो अपग्रेड करने का भी पॉसिबिलिटी इज अवेलेबल इन डेटाबेस। ओके, सो आप अपग्रेड कर सकते हो। फिर टू जनरेट क्लास रोस्टर एज इन द टाइम टेबल अगर जनरेट करना होगा, सो दैट इज एप्लीकेबल विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस। एंड नेक्स्ट इज एज अ फैकल्टी, अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, कोई नया डेटा जनरेट करना है, जैसे कि स्टूडेंट का मार्क्स मुझे जनरेट करना है, तो मैं आपका जो डेटाबेस में जो आपका मार्क्स 1 जो कि आपका टर्म टेस्ट 1 होगा, उसमें जो मार्क्स होगा, टर्म टेस्ट 2 का जो मार्क्स होगा, उसका जो मार्क्स होगा, दोनों को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल करके मैं थर्ड डेटा जनरेट कर सकता हूँ, विच कैन बी योर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स विच इज आउट ऑफ 20 मार्क्स। ओके, सो ये मार्क्स मैं जनरेट कर सकता हूँ और फिर वो आप यूज करके आप व्यू कर सकते हो। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी डेटाबेस एग्जांपल। सो सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज database management system, what are the characteristics of database management system, या what are the application, what are the advantages and disadvantages of database management system। अगर टाइम मिले, अगर आपके पास वक्त मिले, सो बेटर ये होगा कि कोई भी थियरी के साथ में अगर आप एग्जांपल लिखते हो तो ज़्यादा बेटर आपका आंसर होता है। ओके, सो अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए तो सिर्फ आप ये 2 लाइन में ये एक लिख के खत्म नहीं करोगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प इन क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस इन ऑर्डर टू
स्टोर रिट्राइव डेटा इजीली। सिर्फ इतना लिख के आप खत्म नहीं करोगे, आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। सो वो जो एग्जांपल देना है वो एग्जांपल आप यहाँ से उठा के एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो न्यू स्टूडेंट आसानी से ऐड हो सकते हैं, कोर्सेज आप ऐड कर सकते हो, इंस्ट्रक्टर को ऐड कर सकते हो, एटसेट्रा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, we'll go to the next slide. Next slide is a difference between file system and database management system. It is one of the important slides basically, so please mark it as an important one. Sawal, second important question. If please note down the second important question. Differentiate between file system and database management system. The second question, which is important in this module, is differentiate between file system and database management system. Okay, so 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है पहले क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट, कंपलसरी, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। अगर जनरली फर्स्ट मॉड्यूल का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर पहले मॉड्यूल में ही पूछा जाता है। ओके, सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाइल सिस्टम होता क्या है। सो कोई बता सकता है व्हाट इज अ फाइल सिस्टम? व्हाट इज अ फाइल सिस्टम? Collection of data in files. Collection of data in files. And what is database management system? That is also the collection of data, Yes. right? ओके, सो अगर फाइल सिस्टम पे मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बता सकूं, सो अगर आप विंडोज यूज करते हो या फॉर्मेट मारते हो तो देयर इज अ फाइल सिस्टम दैट इट फॉलोज। या पेन ड्राइव अगर आप फॉर्मेट करते हो तो देयर इज फाइल सिस्टम कॉल्ड एज FAT32। सुना है आपने FAT32? हैज एनीबॉडी हर्ड अबाउट? yes sir. ओके ओके, सो जनरली कंप्यूटर के अंदर जब आप हार्ड डिस्क के अंदर जनरली अगर आप कैसे बताऊं, 1 सेकंड, आई विल जस्ट मिनिमाइज इट एंड ट्राई टू मेक अ डायग्राम आउट ऑफ इट। सो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, लेट्स अज्यूम आई हैव गॉट कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द टाइम एग्जैक्टली राइट नाउ? 10:32. 10:30. Okay, so what is the time? Okay, so we have got half an hour left. Okay, so I'll just try to make a diagram Right. quick. Okay, though it is a little bit deviation, but it is important to learn this thing. So I've got a processor. Okay, I've got a memory, and I've got a input-output devices. ये तीन components से generally आपका computer बनता है. Okay, I've got a input-output devices. ओके, सो अगर मुझे कोई भी डेटा अगर चाहिए तो मैं इनपुट पे डालूंगा, वो प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर वो डेटा जो है वो मेमोरी से लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद मुझे वो डेटा को वापस आउटपुट डिवाइस पे मुझे डिस्प्ले करेगा। सो दैट इज हाउ जनरली अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। ओके, सो PRO स्टैंड फॉर प्रोसेसर। जो आप i3, i5, i7 यूज करो या Ryzen 3, Ryzen 5 यूज करो, वो प्रोसेसर में आ जाएगा। मेमोरी के अंदर जो आपका जनरली ये जो मेमोरी की बात की जा रही है, that is generally which memory? Can you tell me what is this memory? This memory is which memory in your computer? If you're talking about your computers, it is RAM. Okay, it is which memory? RAM. RAM का full form? Random Random access machine. Okay, sorry, random access memory. And finally we have got input output devices. Input output devices का मतलब कीबोर्ड, माउस, आपका जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, स्कैनर, प्रिंटर, योर मॉनिटर एटसेट्रा। ओके, सो दीज आर योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो जनरली जब आप मेमोरी में जाते हो, ओके, व्हेन यू गो इनटू मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो जनरली डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? हाउ द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरीज? कैन एनीबॉडी टेल मी? binary form. बाइनरी फॉर्म। सो मेमोरी में अगर मान लो मुझे, लेट्स अज्यूम मुझे 5 स्टोर करना है। ओके, 5 स्टोर करना है। सो 5 को अगर बाइनरी में अगर आप लिखोगे तो वो बन जाता है 0 1 0 1, बराबर? Yes, sir. Do you know right how to convert it into binary या कैसे करना है? ठीक है, अगर नहीं पता है तो सिर्फ इतना अज्यूम कर लो कि जो 5 है उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में तो कुछ ऐसा बन जाता है। तो 0101 ऐसा कुछ स्टोर होता है मेमोरी में। सो सिर्फ इतना ही नहीं होता है, उसके अलावा मुझे और भी कुछ सारे कैस्केडिंग जीरोस डालने पड़ते हैं, बहुत सारे जीरो डालने पड़ते हैं, क्योंकि एक अगर आपको याद होगा सी में आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर के लिए जो स्पेस अलाउड है, सी के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो 2 बाइट्स ऑफ स्पेस इज देयर फॉर इंटीजर। ये पढ़ा है आपने कहीं? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. ओके,
सो ये Yes, 2 sir. बाइट क्यों है, क्या है, वो कैसे है, जब हम जावा में पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट जनरली इंटीजर के लिए 2 बाइट अलाउड है। सो 2 बाइट अलाउड है, मतलब अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 का 4 बिट में मैं 0101 लिख लूंगा, ओके 0101। लेकिन इसको अगर मैं इंटीजर में अगर मुझे स्टोर करना है, इंटीजर में 2 बाइट यानी कितना बिट्स हो जाता है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 2 बाइट? 16. 16। सो 16 में से 4 तो मुझे पता है, इट इज 0101। The remaining 12 should be all zeros. Okay, so remaining 12 should be all zeros. तो ऐसे मुझे ऐसे 12 जीरो बनाने पड़ेंगे। तो ये जो है कंप्यूटर में ये क्या होगा, इट विल बी स्टोर्ड एज 5। क्लियर है? इट विल बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज 5। दूसरी बात, मेमोरी में जब आप जाओगे ना, तो मेमोरी में ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स रहते हैं। ओके, ऐसा एक स्लॉट हो गया, 2 स्लॉट हो गया, 3 स्लॉट हो गया, 4 स्लॉट हो गया, ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। और हर स्लॉट पे इट इज यूनिवर्सल। ओके, हर स्लॉट पे 1 बाइट का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, 1 बाइट का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल कितना बिट होगा 1 बाइट में? 8 बिट्स। सो ये जो 16 बिट का आपका जो मेमोरी है, वो आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। वन विल बी कॉल्ड एज 00, अदर विल बी कॉल्ड एज 05। ओके, तो अगर 5 स्टोर करना है तो ये 2 जगह पे स्टोर होगा, एक जगह पे 00 स्टोर होगा और एक जगह पे 05 स्टोर होगा। ओके, और इन दोनों को मैं अगर एक्सेस कर पाऊंगा, तो मैं जो वैल्यू स्टोर होगी इन दोनों जगह पे वो 0005 स्टोर होगी। क्लियर है? और ये जो जगह है, जिस जगह पे ये 00 स्टोर है, इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ मेमोरी। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ मेमोरी। सो ये जो एड्रेस ऑफ मेमोरी होता है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है। तो जैसे कि 1 2 3 A B 4 5 H, ये समझ लो ये एक एड्रेस है जहाँ पे 00 स्टोर्ड है। और यहाँ पे इस एड्रेस पे मान लो स्टोर्ड है 2 नहीं, अगला ही एड्रेस है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 A B 4 6 H। तो ये दोनों एड्रेस पे आपका क्या डेटा स्टोर्ड है? 05 स्टोर्ड है एड्रेस आपका। और वो 05 डायरेक्टली 05 स्टोर नहीं होगा, वो एक बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होगा, विच विल बी 13 zeros 101 ऐसे फॉर्म में स्टोर होगा। ओके, सो ये सब जो मैपिंग करना होता है, दैट मैपिंग इज जनरली डन बाय अ सिस्टम कॉल्ड एज फाइल एलोकेशन टेबल। ओके, सो फैट करके टेबल होता है, वो फैट टेबल मुझे बताता है कि कौन सा फाइल कौन से लोकेशन पे। ओके, फैट 32 इज अ फाइल एलोकेशन टेबल। एक टेबल के फॉर्म में होगा। ओके, एक टेबल के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे टेबल पे लेट्स अज्यूम अगर आप एक फाइल बनाते हो, उस फाइल का नाम है, कल हमने एक फाइल बनाया था जिसका नाम था demo.java, राइट? demo.java। सो ये जो demo.java है वो कौन से लोकेशन पे मेमोरी में स्टोर होगा। सो कौन से लोकेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हेक्साडेसिमल नंबर्स। ओके, जो कि बहुत बड़ा होता है। ओके, सो ये नंबर यहाँ पे लिखा होगा। सो लेट्स अज्यूम 1 2 3 4 A B 5 H लोकेशन पे वो स्टोर्ड है। ओके, वो उस लोकेशन पे स्टोर्ड है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे demo.java वहाँ पे स्टोर है। आपकी कोई मूवी होगी वो एक लोकेशन पे होगी, अगर आपका कोई गाना होगा तो वो इस लोकेशन पे होगा। तो जनरली एवरीथिंग इन कंप्यूटर्स आर जनरली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, और उस फाइल का एड्रेस डिफाइन करने के लिए देयर इज अ टेबल कॉल्ड एज फाइल एलोकेशन टेबल। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर इनफ? Yes. Yes, sir. ओके, सो ये जो बताने का मकसद था, वो मकसद ये था कि अगर मान लो अगर आपको अपना मोबाइल बेचना है, ओके, या अगर आपको अपना कंप्यूटर बेचना है, तो आप डायरेक्टली बेच देते या उसको पहले फॉर्मेट करते? व्हाट यू डू? Format. You want to Format. format it, right? Because there are certain sensitive information that can be stored onto your computer या mobile, तो आप उसको format करते हो। So when you format it, what is actually happening? What is actually happening in formatting? Because all your data gets removed. स्टोरेज वो पूरा डिलीट कर देना। स्टोरेज जो है वो पूरा डिलीट कर देना, राइट? सो वो पूरा स्टोरेज जो है वो डिलीट नहीं होता है। व्हाट इज हैपनिंग इन फॉर्मेटिंग इज बेसिकली ये जो एड्रेस होता है ना, ये एड्रेस सिर्फ उड़ जाता है, डेटा वो वहीं पे रहेगा। डेटा अगर आप देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज रिकवरी, अगर आप पेन ड्राइव में देख पाओगे, देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज रिकवरी सॉफ्टवेयर। सुना है आपने इसके बारे में? हर्ड अबाउट अ रिकवरी सॉफ्टवेयर? यस सर, सुना। सो
रिकवरी सॉफ्टवेयर से अगर आप रिकवर करोगे ना तो आपका जो लॉस डेटा है वो मिल जाएगा वापस, ओके। बट जो हम फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट में डेटा उड़ता नहीं है, डेटा उधर का उधर ही रहेगा, बस उसका फाइल एलोकेशन टेबल से जो एड्रेस है वो उड़ जाएगा, तो आपको पता नहीं कि वो फाइल कहाँ पे, तो इसलिए वो एम्प्टी दिखाने लगता है। सो अगर बाई चांस वो अगर आपने फॉर्मेट मार के किसी को दे दिया तो और वो किसी ने रिकवर किया तो आपका पुराना डेटा मिल जाएगा उसको, ओके। सो व्हाट वी शुड डू, व्हाट प्रैक्टिस दैट वी शुड डू, देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज न्यूक, ओके। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है न्यूक, NUKE। ये सॉफ्टवेयर को यूज करके आपको क्या करना होता है, इसको जब आप रन करते हो ना तो आपका जितने भी हार्ड डिस्क या रैम है, जितने भी बिट्स है, उस बिट पे जा करके जो भी 1 होगा या 0 होगा उसको हमेशा सबको 0 बना देगा, ओके। सो इट कंप्लीटली इरेजेस ऑल द डेटा, और इसको कम से कम कई घंटे लगते हैं इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, तब जाके आपका एक हार्ड डिस्क पूरी तरह से इरेज होता है, ओके। सो दैट वी जनरली यूज। सो दैट इज द ओवरव्यू दैट आई वांट टू गिव। ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना था मुझे आपको, क्योंकि एज अ कंप्यूटर पर्सन यू शुड नो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनटू अ कंप्यूटर। सर सो हाँ बताओ, कुछ सवाल किसी का? कि एड्रेस डिलीट हो जाएगा तो पर वो तो स्टोरेज तो हमें पूरा खाली बताता है ना इसके स्टोरेज खाली बाद तो। बताता है, स्टोरेज हमेशा आपको खाली बताएगा, क्योंकि जब भी आप फॉर्मेट मारोगे तो वो बेसिकली वो जो भी साइज है वो साइज एग्जैक्टली बता देगा, क्योंकि उसके एज पर द फाइल एलोकेशन टेबल, एज पर जो टेबल है वो टेबल में एड्रेस वो चेक करता है एड्रेस है कि नहीं, अगर एड्रेस नहीं तो वो बोल देगा कि खाली है। लेकिन वो एक्चुअली पेन ड्राइव भरा हुआ रहता है, उसके अंदर जो भी आपका 1 है वो 1 रहेगा, जो 0 है वो 0 रहेगा, उसको वो डिलीट नहीं करता है। वो सिर्फ जहां पे पॉइंटर है, जहां पे वो पॉइंट कर रहा है आपका कि यहाँ से आपकी फाइल स्टार्ट हो रही है, वो सिर्फ उस फाइल को उड़ाता है, उस एड्रेस को उड़ाता है, ना कि उस फाइल को उड़ाता है। सो डेटा विल बी देयर। आपकी मूवी अगर आपने डाला होगा, आपने फॉर्मेट बनेगा, वो मूवी हमेशा रहेगी। आप चाहिए तो आप ट्राई करके देखो, आप रिकवरी सॉफ्टवेयर से रिकवर करके देखो, आपको वो डेटा, आपको डिलीट की हुई मूवी वापस आपको मिल जाएगी, ओके। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो क्या करता है, रिकवरी सॉफ्टवेयर वो जाता है, वो हर एक फाइल को सर्च करता है, इंडिविजुअल हर एक बिट को सर्च करता है और चेक करता है कि इस इंडिविजुअल फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे वो इंडिविजुअल फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट उसको मिल जाता है, वो फाइल एलोकेशन टेबल में उसको अपडेट कर देता है कि देयर इज अ फाइल कॉल्ड एज, लेट्स अज्यूम कोई एक 3 इडियट मूवी है, तो 3 इडियट .mkv करके एक फाइल है, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है। सो वो वापस रिकवर हो जाती है आपकी मूवी, okay. So file formatting is basically means you're formatting the file allocation table, you are not formatting the complete file. Is it clear? और कुछ डाउट किसी को? Does anybody has any doubt? No, sir. Okay, so we'll go to the next part. Next part is called as a file system, and other one is called as a database management system. So file टाइम हो गया system, sorry, किसी को कुछ बोलना है? सर, टाइम हो गया। Sorry, टाइम हो गया? हाँ नहीं यार, अभी तो 15, अच्छा 9:40, अच्छा 10:45 ही टाइम है क्या? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थॉट 11 बजे तक है। फाइन फाइन फाइन। सो ठीक है, ये जो डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है किसी को? Does anybody has any doubt? No, sir. No, sir. Okay, fine. I'll just take down your attendance. Okay, little bit. Okay, so currently 49 there है ना? Okay, ठीक है, हो गया, attendance हो गया। Fine, thank you guys, thank you so much. You can leave now.